Hello students, welcome to this lecture number 13. In the lecture number up till lecture number 12 we have completed mostly our unit number 1 and now we are starting unit number 2. In the first unit what things we have left is your one portion I have left, and the name of that portion is coupling of the circuits. It is very simple portion, and that portion I will be covering in the later videos, but it is the time not to confuse you and to take you to the next part of the network analysis, which is very interesting, and that part is your theorems. This is the theorem part. If you can clearly see in the video in the screen that in lecture number 2 unit number 2 you have to study theorems. Now theorems are divided into two types, part A theorems and part B theorems. And in part A theorems we have Thevenin's theorem, Norton's theorem, superposition theorem, maximum power transfer theorem, and in part B we have substitution, Taligans, reciprocity, Millimans and compensation theorems. So in today's lecture, from today we have to start this part A, that is these four theorems. Now let me tell you about the importance of these theorems. These four theorems are very important for the competitive exams and for the RGPV exams, also university exams also, because from these theorems you will be getting your numerical questions, and these theorems are just simple proof to be proved theorems. These theorems questions are very simple, likely to tell you that maybe you will not be getting numerical problems from these theorems. You will be getting only the you will be asked to prove these theorems only with an example. So in this lecture number 13 we will be starting with the portion of theorems, and in my previous classes of your first year when I have taken, I have taught these two theorems, Thevenin's theorem and the superposition theorem, but still I will be continuing here with these theorems, and I will be starting today the Thevenin's theorem. This is the starting today Thevenin's theorem, and with the comparison of Norton's theorem. Two theorems we will be studying parallelly, Thevenin's theorem and Norton's theorem. Now why we are studying it parallelly? Because the procedure of these two theorems are likely same. The procedures are likely same, and they differ in a little bit manner, and that difference is very important to analyze these two theorems. A comparative analysis makes the concept very clear when you will study these theorems. So what is this? The statements. So what is the statements? What is the statement? Statement of this theorem and the statement of this theorem. मैं सिंपल भाषा में अगर बोलूं तो मैं एक सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर. तो ये एक सर्किट आप देख रहे हैं, और जब मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था, लेकिन अब ये थर्ड सेमेस्टर है तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करेंगे. हम यहाँ लिखेंगे ZTH
और यहाँ लिखेंगे ZL। ये ZTH वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि नेटवर्क एनालिसिस में अब हम सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस की बात नहीं कर सकते। नाउ वी विल स्टडी अबाउट इंडक्टेंस एंड ऑल्सो अबाउट द कैपेसिटेंस। और आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में क्लियरली ये देखा है कि जब भी इंडक्टेंस की बात करते हैं तो पॉजिटिव इमेजिनरी और कैपेसिटेंस विल बी नेगेटिव इमेजिनरी और रेजिस्टेंस विल बी अ रियल नंबर। रियल नंबर से इसको डिनोट किया जाएगा। तो जब भी दोनों चीजें एक साथ होंगी R और XL तो ये मिलके Z बन जाएगा। RC सर्किट भी हो सकता है, ये RL भी हो सकता है, RLC भी हो सकता है। तो ये कहलाएगा इम्पीडेंस। और ये है मेरा वोल्टेज, थेवेनिन्स वोल्टेज VTH, ये है ZTH, ये है ZL। अब क्या है स्टेटमेंट ये मैं आपको बताता हूं। और एक और सर्किट यहां बना रहा हूं, देखें। अभी तक मैंने आपको ये बिल्कुल नहीं बताया है कि अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया है कि ये थेवेनिन्स थ्योरम का और नॉर्टन्स थ्योरम का पर्पस क्या है और कैसे कैसे इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे। बस जो फाइनल टारगेट मिलेगा वो बता रहा हूं। देखिए, ये एक सिंपल सीरीज सर्किट दिखाई दे रहा होगा और ये एक सिंपल पैरेलल सर्किट दिखाई दे रहा है। ये जो पॉइंट है इसको हम, इस जगह को हम बोलते हैं, ये है लोड, ये है लोड। थेवेनिन्स थ्योरम बोलती है कि वो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को, कि एनी नेटवर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ सिंपल सीरीज सर्किट। अगर एक सिंपल सीरीज सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी नेटवर्क को, तो हम लोग यहां पे अगर किसी भी सीरीज उसको कन्वर्ट कर किया जा सकता है, तो ये थोड़ा सा ब्लर हो गया था, सॉरी। अगर कन्वर्ट कर सकते हैं तो यहां पर सिंपल एक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा के करंट इन दी लोड कैलकुलेट किया जा सकता है। ये लोड है और हमेशा किसी भी क्वेश्चन में करंट पता करते हैं अक्रॉस दी लोड, तो वो हम पता कर सकते हैं बाय अप्लाइंग अ फॉर्मूला के I इक्वल टू VTH डिवाइडेड बाय ZTH प्लस ZL। और जब बात आएगी इस सर्किट की तो हमें फिर से लोड में करंट पता करना होगा। और अब की बार हमें करंट गिवन है, करंट, तो यहां से करंट जा रहा है I, तो ये I जा रहा है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक जा रहा है Zn में और एक जा रहा है ZL में। तो हम यहां पर थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूं। हम यहां पर इस I लोड का करंट, इस जगह का जो करंट होगा उसके लिए करंट डिवीजन रूल लगाएंगे। और करंट डिवीजन रूल क्या होता है, दोनों को ऐड कर देते हैं बॉटम में, Zn प्लस ZL, और जिसमें पता करना होता है उसके अपोजिट इंपिडेंस को ऊपर लिखते हैं Zn को, इनटू जो करंट आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं I। तो ये जो चीज मैंने आपको सिखाई ये क्या है, ये फाइनल आउटकम है स्टूडेंट्स। हमें करना क्या है, हमें कोई क्वेश्चन गिवन होगा, कोई भी न्यूमेरिकल गिवन होगा, जो कि मैं अभी आपको यहां पर रब करके एक न्यूमेरिकल को अज्यूम कर ही रहा हूं। एक मिनट, इस वीडियो को कंप्लीटली सुनते जाइए, पॉज मत लीजिए, उसके बाद क्लियर होगा। ये एग्जाम्पल के तौर पर एक सर्किट ले रहा हूं मैं, न्यूमेरिकल। सपोज कीजिए ये है वो न्यूमेरिकल।
सपोज कीजिए कि ये न्यूमेरिकल है, इसकी वैल्यू है -j, इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू है 2j। ये आप आसानी से समझ गए हैं कि अब RLC सर्किट है तो इंडक्टर की वैल्यू +2j है और कैपेसिटर की वैल्यू -j, -2j, -3j डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। और आपको बोला गया है फाइंड I बाय थेवेनिन्स थ्योरम, शॉर्टकट में लिख दिया है मैंने थेवेनिन्स थ्योरम, एंड बाय नॉर्टन्स थ्योरम। ये दो एक ही क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया है और I अभी कहीं दिख नहीं रहा है, तो I के लिए इस तरह से एरो बना दिया है, ये है I, ये बुक का क्वेश्चन है। इस तरह से एरो बनाने का मतलब ये है कि इस पूरी ब्रांच में करंट पूछा गया है हमसे I। तो जिस भी ब्रांच में हमसे करंट पूछा जाता है स्टूडेंट्स, वो पूरी ब्रांच को हम लोड मान सकते हैं, यानी कि ये करंट जो I है वो इस ब्रांच का पार्ट है I, इस ब्रांच का पार्ट है I। तो मेरे पास जो Z लोड होगा, ZL जिसको मैं कह रहा हूं, वो मैं क्वेश्चन को देखते ही समझ गया हूं, ZL जो मेरा होगा वो होगा 1 - j। इसको मैं बॉक्स में लिख लेता हूं। ओके, अब थेवेनिन्स थ्योरम कहती है बाय सॉल्यूशन, अगर मैं सोचूं इसका सॉल्यूशन प्लान करूं सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि थेवेनिन्स थ्योरम बोलती है कि किसी भी सर्किट को एक सीरीज सर्किट में कन्वर्ट किया जा सकता है, सीरीज सर्किट में अक्रॉस दी लोड। और अगर मैं इसी क्वेश्चन को अक्रॉस दी लोड नॉर्टन्स थ्योरम से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, तो नॉर्टन्स थ्योरम कहती है कि एनी सर्किट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ पैरेलल सर्किट अक्रॉस दी लोड। तो ये थेवेनिन्स थ्योरम का और नॉर्टन्स थ्योरम का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल भी है और बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करने का तरीका है, और बहुत ही अच्छे से वाइवा का भी क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन थेवेनिन्स थ्योरम एंड द नॉर्टन्स थ्योरम। तो यहाँ आप लोग हमेशा बोलेंगे कि अक्रॉस द लोड एनी सर्किट कैन बी कन्वर्टेड इनटू, मतलब इसको लोड मानते हुए, इसको अगर हम लोड मानते हुए यहां से अलग कर लें, तो अब हमें जिस ब्रांच में करंट पता करना है, ये सर्किट अभी छोटा है, हो सकता है ये बड़ा भी हो। अब आगे आगे जैसे जैसे हम और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हो सकता है क्वेश्चन और बड़े होते चले जाएं। तब ऐसी कंडीशन में जिस भी जगह पर हमें करंट पता करना होगा वो जगह लोड कहलाएगी। अगर सपोज यहां पे पूछा गया होता I, ये वाला करंट 2 में बोला होता तो 2 लोड बन जाता। अब अगर यहां पर I होता तो ये लोड बन जाता। तो लोड क्वेश्चंस में गिवन रहेगा, तो फिलहाल क्वेश्चन में ये गिवन है। अब हमें क्या करना होगा, अब हम कहेंगे कि इस सर्किट को अक्रॉस दी लोड, अब हम पहले बाय थेवेनिन्स थ्योरम की बात करते हैं। बाय थेवेनिन्स थ्योरम अक्रॉस दी लोड, ये लोड है मेरा, तो ये लोड में लोड की जगह बना देता हूं, ये मेरा लोड है। लोड मतलब जिस जगह करंट पता करना है। और वोल्ट, अच्छा इस क्वेश्चन में मैंने वोल्टेज सोर्स की वैल्यू नहीं ली है, तो मैं ले लेता हूं 20 ∠0°, मतलब 20 वोल्ट की बैटरी हो गई है, ठीक है। और उसका फेज डिफरेंस है ∠0। ये ∠0 से कंफ्यूज नहीं होना है आपको, जब भी एसी सर्किट पढ़ेंगे तो हम एंगल्स और कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते रहेंगे। तो लोड ये हो गया। अब थेवेनिन्स थ्योरम का मतलब क्या बोल रही है कि आपको Z लोड तो गिवन है, ये रहा Z लोड। अब आप इसके अक्रॉस एक सीरीज सर्किट बनाइए जिसमें आप बनाएंगे ZTH और आप बना देंगे VTH। तो Z लोड हमें मालूम है यहां पे आएगा। अब इसके अक्रॉस हमें ZTH और VTH बस बनाना है और करंट का फॉर्मूला लगा देना है।
तो जो करंट I यहाँ पूछा गया है, वो करंट यहाँ I जो पूछा गया है उसका फॉर्मूला हो जाएगा VTH डिवाइडेड बाय ZTH प्लस ZL। तो कितना इजी है। लेकिन अब हमारा टास्क क्या है? अब हमारा टास्क ये है कि ये तो गिवन है ZL, हमें ZTH और VTH को पता करना होता है। तो हम पता करते हैं अपने पहले क्वेश्चन में। सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद बिल्कुल जब ये थेवेनिन्स और सुपरपोजिशन नॉर्टन्स थ्योरम खत्म होने लगेगी, तब हम इसका स्टेटमेंट एक बार लिख कर पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम पता करते हैं ZTH। तो ZTH क्या होगा? ZTH होगा, इस सर्किट में से आपको कुछ प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है कि जो लोड है उसको बाहर निकाल दीजिए, जो भी सोर्सेज हैं उन्हें शॉर्ट कर दीजिए। अगर वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट कर दीजिए। वोल्टेज सोर्स की पहचान कैसे होगी? अगर प्लस माइनस लिखा है तो वो वोल्टेज सोर्स है, और अगर एरो बना है तो वो करंट सोर्स है। तो प्लस माइनस 20 एंगल 0 लिखा है, इसका मतलब वो एक वोल्टेज सोर्स है। और सॉरी, तो वो एक वोल्टेज सोर्स हो गया। और कहाँ था मैं? तो ये बन गया वोल्टेज सोर्स। कंफ्यूज हो गया मैं फोन की वजह से। हाँ, तो ZTH निकालना है हमें, तो ये वोल्टेज सोर्स में बता दिया आपको। अब हम क्या करेंगे, ये एक वोल्टेज सोर्स है तो हम इसको शॉर्ट कर देंगे। तो देखो ये जो जगह थी, ये जगह हो गई है ओपन। जिस जगह पर मेरा लोड लगा था वो जगह हो गई है ओपन। और ओपन के बाद यहाँ पर वोल्टेज सोर्स की बैटरी लगी हुई है, देखिए, तो इसको शॉर्ट कर देंगे और यहाँ रेजिस्टेंस आ जाएगा इस तरह, और यहाँ आ जाएगा 1 इस तरह, और यहाँ आ जाएगा 2J इस तरह। तो दिस इज 1, दिस इज 2J, और ये हो गया मेरा 2, और ये है नथिंग। ठीक है, तो अब यहां से मतलब ZTH करने के कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू ड्रॉ दिस टाइप ऑफ सर्किट। अब इस जो ओपन एंड होता है उस जगह से हम एंट्री लेंगे। याद रखिएगा एक और बात, इसी क्वेश्चन में क्लियर कर देता हूं। अगर ये करंट सोर्स होता तो हम यहां इस जगह को शॉर्ट नहीं करते, ये जगह ओपन हो जाती। करंट सोर्स की वजह से अगर ये जगह ओपन हो जाती तो फिर ये सीधा सीधा इम्पीडेंस इसके अक्रॉस, इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस अगर हम चेक करते ऐसे, इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस हम चेक करें कि इम्पीडेंस क्या है, तो सीधा सीधा आ रहा है 1 और 2J, यानी इम्पीडेंस आ रहा है Z इक्वल टू 1 प्लस 2J। कितना इजी हो गया। और इसी इम्पीडेंस को बोला जाता है ZTH। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर है 2। क्यों ये 2 को कंसीडर करना पड़ेगा? क्योंकि ये जगह ओपन नहीं है, ये जगह शॉर्ट है। तो जब शॉर्ट है तो ये जगह, ये पॉइंट और ये पॉइंट 2 से कनेक्टेड माने जाएंगे। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि इन दोनों पॉइंट के बीच में 1 प्लस 2J अकेला है। अब हमें इस पूरे सर्किट को 2, 1 और 2J को इन दोनों पॉइंट के बीच में सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? बड़ा इजी है। ये दोनों सीरीज में है, तो ये दोनों सीरीज में हो गए। 1 प्लस 2J सीरीज में आ गया, और 1 प्लस 2J पैरेलल टू 2 है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो ZTH है वो निकाला जा सकता है। तो ZTH विल बी इक्वल टू 2 पैरेलल टू 1 प्लस 2J। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 2 इंटू 1 प्लस 2J डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 प्लस 2J। तो ये 2 प्लस 4J डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2J। तो यहीं पर ओम्स, यहीं पर छोड़ देता हूं इसको पोलर फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और इस कैलकुलेटर से इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो एक बार ZTH निकल गया तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें फाइनली चाहिए क्या था? VTH
ZTH और ZL तो गिवन रहता है, तो ZTH मैंने निकाल लिया है स्टूडेंट्स, और वो ये रहा। अब हमको निकालना होगा VTH। एक खुशखबरी ये है कि जो ZTH होता है थेवेनिन्स थ्योरम में, सेम टू सेम प्रोसेस होती है Z नॉर्टन्स की भी। मतलब जो मैंने अभी आपको रब कर दिया, पास्ट में वीडियो को देखेंगे तो Z नॉर्टन में जो पैरेलल सर्किट था, पैरेलल सर्किट में ZL था जो कि गिवन हो गया, और ZN जो है यहाँ जो लगना था, और उसके बाद I की वैल्यू निकाल रहे थे हम करंट डिवीजन रूल में, उसमें Zn अपॉन Zn प्लस ZL। तो Zn आपको मिल चुका है, क्यों कैसे, उसकी यही प्रोसेस है जैसे ZTH है वही Zn है। अब VTH कैलकुलेट करेंगे, VTH कैलकुलेट करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, और इसको मिटा देता हूं। तो अब हम करेंगे अपना थर्ड और लास्ट स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ VTH। मतलब थेवेनिन्स थ्योरम के लिए कैलकुलेशन ऑफ VTH कर रहे हैं, और नॉर्टन्स थ्योरम के लिए कैलकुलेशन ऑफ I नॉर्टन IN करेंगे। तो मैं दोनों कर लेता हूं, VTH एंड IN। तो VTH यहां कर देता हूं आधे बोर्ड पर, और IN यहां कर देता हूं। तो करना ये होगा कि जो आपने ZTH में सर्किट हासिल किया था, वो क्या हासिल किया था उसको रीड्रॉ करना पड़ेगा। वो कैसा सर्किट था, वो सर्किट ये था। और दूसरा भी यहीं पर मैं बनाता हूं, यहां था 1, ठीक, ये 1 है, ये 2J है, ये 2 है। तो अब हमें कैलकुलेट क्या करना है वो समझते हैं। VTH पहले जानना होगा कि VTH कहाँ का वोल्टेज है। तो जिस जगह पर आपका लोड लगा हुआ था, इस जगह आपका लोड लगा हुआ था यहाँ पर, देखिए ना इस क्वेश्चन में सेम मैंने बिल्कुल बना दिए हैं दोनों। इस क्वेश्चन में यहाँ लोड लगा है, तो यहाँ लोड लगा है, इस जगह के वोल्टेज को, इस जगह के पॉइंट के वोल्टेज को हम बोलेंगे VTH। मुझे यहाँ का वोल्टेज पता करना है, और मैं यहाँ पर अब की बार जब मैं ZTH कैलकुलेट कर रहा था, तब मैंने ये वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर रखा था। लेकिन अब मेरे को अगर VTH वोल्टेज कैलकुलेट करना है, तो मैं इस जगह को वापस इंट्रोड्यूस कर दूंगा 20 एंगल 0 को। मतलब आप समझ गए होंगे, ये 20 एंगल 0 आ जाएगा यहाँ पर, तभी तो हम यहाँ पर वोल्टेज निकाल पाएंगे। तो वोल्टेज निकालने के लिए इस जगह को ओपन रखेंगे। अब ये I नॉर्टन इस सर्किट में क्या है, तो इस जगह को शॉर्ट कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई कि थेवेनिन्स थ्योरम में बस देखो ZTH और ZN दोनों का सेम था। बस VTH कैलकुलेट करते समय इस जगह का ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है, यहां पर वोल्टेज, और यहां पर करंट निकालना है, तो वो I नॉर्टन कहलाएगा, और यहां पर VTH ओपन सर्किट वोल्टेज कहलाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, जिस जगह पर वोल्टेज कैलकुलेट करना है उस जगह को टच करो और देखो कि वो किस जगह से टच है। तो ये जगह इस जगह पर टच हो रही है, और यहां पर कोई भी एलिमेंट नहीं लगा है, और ये ओपन है, ये पूरी लूप ओपन है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि हमें ये वोल्टेज कैलकुलेट करना है। अब इस वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए हम देख पा रहे हैं कि साफ साफ 20 एंगल 0 यहां पर कनेक्टेड है। तो कई लोग ये बोलते हैं कि 20 एंगल 0 ही यहां का वोल्टेज होगा।
लेकिन ये पॉसिबल तब होता जब इसी सीरीज ब्रांच के दूसरे एंड पर भी ये 2 नहीं होता अगर, और ये स्ट्रेट लाइन ऐसी होती, तो हम जरूर कहते कि यहां पर ये जो वोल्टेज है ये कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है सर, जो ये वोल्टेज है वो 20 एंगल 0 है। बट यहां पर 2 होने के कारण हम ये नहीं कह सकते कि इस जगह का वोल्टेज 20 एंगल 0 है। हम इस बात को समझते हैं, इजी करने के लिए मैं इन दोनों की पोजीशन एक ही ब्रांच में शिफ्ट कर देता हूं। ये किया जा सकता है, ऐसे समझ में और अच्छे से आएगा। 20 एंगल 0 को अगर मैंने नीचे कर दिया और 2 को मैंने यहां लिखा, तो अब देख पा रहे हो आप इस जगह का वोल्टेज, अब देखो ये चीज 0 से कनेक्टेड होना चाहिए, ये 0 से कनेक्टेड है। अब तो अब इस वोल्टेज में से, इस प्लस माइनस सोर्स 20 एंगल सोर्स में से अगर मैं 2 का ड्रॉप माइनस कर दूं, यानी 2 का ड्रॉप क्या होगा, 2 इंटू आई, और ये आई क्या है, तो अज्यूम कर लूंगा कि लेट द करंट फ्लोइंग हियर इज आई, तो 2i माइनस कर दूं तो जो बचेगा वो ही तो VTH है। तो VTH की इक्वेशन इस तरह से मिल गई। तो उसके लिए इस VTH को कैलकुलेट करने का जो मेन टारगेट है वो ये हो जाएगा, ये I कैलकुलेट करना। तो I आराम से देख लो, एक ही क्लोज लूप है ये छोटी वाली, तो 20 एंगल 0 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 प्लस 2j, यानी I की वैल्यू यहां आ रही है मेरे पास 20 एंगल 0 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2j। इस I की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मिलेगा 20 एंगल 0 माइनस 2 इंटू 20 एंगल 0 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2j। और जब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, कैलकुलेटर से इजीली सॉल्व हो जाएगा, डाउट क्लास में आप पूछ लीजिएगा कैसे कैलकुलेटर चलाते हैं, तो इसको बहुत इजीली आप कॉम्प्लेक्स में जाकर सॉल्व करके VTH निकाल लेंगे। फाइनली VTH निकल आया, ZTH निकल चुका है, ZL पता है। अब ZL का करंट I इक्वल टू VTH अपॉन ZTH प्लस ZL करके निकाल लेंगे। यहां पर देखते हैं कि ये VTH हो गया। अब हमें करना है क्या, करंट पता, यानी कि हम अब इस जगह का वोल्टेज नहीं पता कर रहे, अब हम इस जगह का करंट पता कर रहे हैं। ये सेकंड पार्ट है और ये दोनों क्वेश्चन सेपरेट हैं बेटा। अब यहां का करंट पता कर रहे हैं। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि सर ने ये ऊपर नीचे शिफ्ट कर दिया, तो देखो इस ब्रांच में मैं इसको ऊपर लिखूं या नीचे लिखूं अपने कन्वीनियंट के हिसाब से सेम है। इसको और इसको भी मैं चेंज कर सकता हूं, 2j को यहां लिख दूं, इसको यहां लिख दूं। क्यों? क्योंकि सीरीज में किसी को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, इफेक्ट क्योंकि सेम होता है। अब हमें ये करंट पता करना है, ये वाला करंट। तो आप बताइए, अगर मैंने इस ब्रांच को शॉर्ट कर दिया है तो ये गेट का क्वेश्चन भी हो सकता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप खुद देखो। इस 20 एंगल 0 और 2 के बगल में कोई भी ब्रांच, कोई भी इंपीडेंस नहीं है पूरी की पूरी ब्रांच में, और यहां पे इंपीडेंस है। तो जब भी कोई करंट यहां से निकलेगा, इस बैटरी से कोई करंट निकलेगा, मैं इसको फिर से शिफ्ट कर देता हूं, तब और अच्छे से समझ में आएगा। इस सोर्स से कोई करंट निकलेगा जब, तो स्टूडेंट जब यहां से शॉर्ट सर्किट पाथ मिल जाता है तो कोई भी करंट यहां जाएगा ही नहीं, मतलब यहां पर करंट हो जाएगा 0। तो सारा का सारा करंट कहां से चला जाएगा, यहां से चला जाएगा। तो ये क्लोज लूप ही बस मान्य होगी, बाकी ये मान्य नहीं होगा। तो आई नॉर्टन करंट यहां से सिंपल वे में सॉल्व होके आ रहा है, वोल्टेज सोर्स डिवाइडेड बाय 2, यानी 20 एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 10 एंगल 0 डिग्रीज। आप देख पा रहे हो VTH कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेशन लंबी है, और आई नॉर्टन यहां सीधा निकल के आ गया है 10 एंगल 0। और अब आप फॉर्मूला लगाएंगे आई का कि आई नॉर्टन इंटू ZN डिवाइडेड बाय ZN प्लस ZL।
तो आपको Zn मालूम है जो कि ZTH था, ऐसे ही ZL मालूम है और I नॉर्टन आपने निकाल लिया है, तो फाइनली आप लोड करंट निकाल लेंगे। तो ये प्रोसेस है थेवेनिन्स थ्योरम एंड नॉर्टन्स थ्योरम का, और इसमें सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग ये होता है कि एनी सर्किट, एनी क्वेश्चन which is having so many resistances, inductance and capacitance, so many sources are there. ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। Any circuit can be converted into a simple series circuit by the Thevenin's theorem, और अगर नॉर्टन्स थ्योरम की बात करें तो any complicated or any circuit can be converted into parallel circuit। अब ZTH और ZN का प्रोसेस सेम रहता है। I hope this question is clear and also you are clear with the concept of networks theorem, two theorems. These both the theorems are very very important। और अब हम नेक्स्ट आगे थोड़ा सा इनकी और प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 न्यूमेरिकल्स की और स्टेटमेंट देखेंगे, और उसके बाद हम पहुंचेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के एक वीडियो पर। इसी में बीच में हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी पढ़ेंगे और फिर सुपरपोजिशन थ्योरम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।